Assalamu alaikum, my dear students and viewers. Today I'll talk about Allama Muhammad Iqbal as a Pakistani poet who is being translated in English and other languages, and he is being read throughout the world. Allama Iqbal, is known as the poet of the East, the one who has dreamt Pakistan, and he is also known as मुसव्वर पाकिस्तान, या वो बंदा जिसने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया. He is one of the prominent writer philosophers from Urdu literature, so he is also the representative of Urdu literature in translation. मैंने अल्लामा इकबाल के अशार में से एक ही यहाँ पे शामिल किया है जो मुझे थोड़ा मौजू लगा इस सूरत हाल में. इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तो गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका. अब ये देख लें कि इकबाल ख़ुद कोई मुखातब हो रहा है. इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तू गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका. So here is biographical detail. He born on November 9, 1877 in Sialkot, died in Lahore on April 21, 1938. His education GC University Lahore, Trinity College Cambridge, and then University of Munich. He was influenced by Goethe, Wordsworth, Ghalib, Bedil, Nietzsche, and Hegel. If you talk about his profession, he was a poet, philosopher, and politician at the same time. Talking about his spouse, he had married for 3 times. मुख्तारा बेगम और मुख्तार बेगम, करीम बीबी और सरदार बेगम. Children, yes, Javed Iqbal, Aftab Iqbal, and Miraj Begum. He was knighted in 1922. Right. Talking about his literary contribution, firstly we see his Persian contribution, or his literary contribution in Persian, Asrar-e Khudi, or The Secret of the Self. It was published in 1915. Then Ramuz-e-Bekhudi, Hints of Selflessness. It was published in 1917. Then we have the Payam-e-Mashriq, The Message of the East. It was published in 1924. Then Zabur-e-Ajam, Persian Psalms. It was published in 1922. Then the Javed Nama, Book of Javed, it was published in 1932. And then we have Masnavi, that was published in 1936, and the title of that Masnavi is Pa-se-Baid Karte Aqwam-e Sharq. Then if we talk about his literary contribution in Urdu language, we have Bange-Dara, it was published in 1924. Then Bale-Jibril, it was published in 1935. Armaghan-e-Hijaz, it was published in 1938, and it is in both languages, in Persian as well as in Urdu. If we talk about his contribution in English language, firstly we have the development of metaphysics in Persia. It is basically his thesis for PhD. And then we have reconstruction of religious thought in Islam, and these are basically lectures delivered by him in English.
And you know that he is known as trilingual writer because he has been writing in 3 different languages. Like first one is Persian. Persian in Urdu is called as फारसी. फ़ारसी ज़ुबान जो है उसकी एक अपनी जो है वो उसका मिजाज है और उसकी जो है लवर फ़ारसी के आज भी मौजूद हैं. उर्दू लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि उसके ऊपर फ़ारसी ज़ुबान और अरबी ज़ुबान है उसका बहुत ज़्यादा असर है. और हमारे जितने बड़े राइटर हैं ख़ास तौर पे अगर हम क्लासिकल उर्दू पीरियड की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रुझान रहा है. देखने को मिलता है कि जो शायर थे अदीब थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर असर उनकी ज़ुबान में नज़र आता था फ़ारसी का. तो जहाँ तक बात है अल्लामा इकबाल की, अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी में कलाम ज़्यादा लिखा है बनिस्बत उर्दू के, और उर्दू में ओबियसली उसमें कम लिखा है. और ये चीज़ इस बात की दलील है कि अल्लामा इकबाल को फ़ारसी की ज़ुबान जो है ना उससे कितना लगाव था. मज़ीद ये आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि उनका जो थीसिस है PhD का वो भी पर्शियन लैंग्वेज पे है और उनका थीसिस इस पे है. तो इसका भी इस बात से ये भी साबित होता है कि किस हद तक उनका फ़ारसी ज़ुबान के साथ लगाव था. और जहाँ तक देखने सुनने में बात आई है तो उसका क्लेम जो है वो पर्शियन लैंग्वेज स्पीकर भी करते हैं. वो अपना भी शायर जो है उनको उतना ही मानते हैं जितना हम लोग मानते हैं. और फिर उर्दू में भी उन्होंने लिखा है. उर्दू में भी उनको बड़ी कमांड हासिल थी उर्दू में जितना लिटरेचर उन्होंने लिखा. और अगर हम उसको देखते हैं तो तब भी हमें पता चलता है कि बड़ा मलका हासिल था उनको उर्दू ज़ुबान पे भी. और जहाँ तक बात है अरबी ज़ुबान की तो अरबी ज़ुबान के बारे में उनका वाक़या एक किताब जो है उसमें मैंने पढ़ा जिसका टाइटल है तज़किरा इकबाल. तो उसमें एक जगह पे है कि एक दफ़ा अल्लामा इकबाल जो है वो तिलावत कर रहे थे कुरान पाक की. तो उनके दरवाज़े के सामने से यानी जिस कमरे में बैठे थे उसके सामने से उनके बुज़ुर्ग गुजरे वालिद साहब. तो उन्होंने एक दफ़ा उन्हें कहा कि इकबाल किसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि अरबी जो है ना वो कैसे पढ़ते हैं. तो फिर ये बात उनको बड़ी महसूस हुई. और फिर एक वक्त आया कि अल्लामा इकबाल जब पढ़ा करते थे तो कहा यह जाता है यानी कि मुख्तलिफ़ किताबों में लिखा गया और पढ़ने का मौका मिला तो आप भी देख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल जब कुरान पाक की तिलावत करते थे ही वाज दैट एक्सपर्ट इन इंग्लिश इन अरबिक लैंग्वेज कि वो अरबी ज़ुबान के मानी और मफ़हूम जो कुरान पाक में बयान थे वो बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते थे. और इस तरह से वो उसके माहिर थे अरबी ज़ुबान के. ये इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग थी अरबिक ज़ुबान के वाले से कि कुरान पाक की तिलावत करते हुए अक्सर जो है ना वो उनके आंसू बहते थे. और कहा जाता है कि जो कुरान पाक के औराक होते थे वो भी तर हो जाते थे. सो कुरान पाक भी आपको पता है कि वो भी बेसिकली कलाम है जो रब का और बंदे के दरमियान होता है. And if we talk about English language, you know that he had been a student at one of the institutes of the Great Britain. वहाँ से ही उन्होंने जो है वो लॉ की भी डिग्री हासिल की और वहाँ लोगों के साथ उनका उठना बैठना था. पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनका ऑलरेडी जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था. तो वो पॉलिटिकली खासे एक्टिव भी हमें नज़र आते हैं. और जब हम ये देखते हैं तो एक वक्त ये भी आ गया था अगर हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट इकबाल की जो है उसकी बात करें एक वक्त ये आ गया था कि कायद आज़म जो है वो भी दिल बर्दाश्त हो गए थे. तो उनको भी जो है वो ख़त लिख के और उसके बाद ख़ुद जो है ना गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में जब शामिल हुए तो अल्लामा इकबाल ने कन्विंस किया कायद आज़म को और उसके बाद जो है उन्हें वापस जो तहरीक पाकिस्तान थी उसमें दोबारा उनको शामिल किया. लिहाजा उनका जो सिर्फ ये नहीं कि अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया बल्कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस हद तक है कि कायद आज़म को कायद आज़म बनाने में भी उनका बड़ा किरदार है.
ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر قائد اعظم کو واپس وہ کنونس کر کے نہیں لے آتے تو obvious سی بات ہے قائد اعظم آج قائد اعظم کے نام سے شاید جانا بھی نہ جاتا جتنا ہم آج عزت قدر کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی انٹروڈکشن ہے علامہ اقبال کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم ان کی جو لٹریری فیچرز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، اور پھر ہم ان کی ٹیکسٹ جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے شکوہ جواب شکوہ اس پہ بات کریں گے۔ تو اف یو ہیو اینی کویشچن یو مے آسک۔ تھینکس، اللہ حافظ۔